Dear children, I am Prashant Shukla. In this video, I have to start lens maker's formula. Okay, it is second part of the highlights of ray optics grade 12. Okay, so I have drawn ray diagram for the derivation of lens maker's formula. As I said in my earlier video that it is papers maker formula, because it is impossible for CBSE Physics 12th paper that any question without lens maker is impossible. Alright. So object I have placed on principal axis, radius of curvature of this surface is R1, this surface is R2, incident ray is striking on the first surface, normal of this surface is here, C1 say, ray going from rarer to denser will bend towards normal and image by this surface will be obtained here. Here, image by this surface will be obtained here. Alright. Now, this surface is also responsible for refraction. So, this image made by this surface will act as virtual object for this. Okay. For this surface, normal will be this side, center of curvature will be this side. So, this will be the normal. Okay. So, finally, image is obtained at I. I have not to give complete derivation because it is highlight. So, after derivation, you will get this formula 1 by f, very important derivation. It is very important derivation, I am not doing it. 1 upon f is equal to refractive index of lens upon refractive index of the surrounding. Application part I am doing. 1 upon R1 minus 1 upon R2, radius of curvature of this, radius of curvature of this. While solving conceptual question and numerical, you will place R1 plus R1 because R1 is this side. Sign convention I have told in the previous video. And R2 is radius of curvature of this surface, that will be this side. So, R2 you will place minus. So, as far as the numericals and conceptual questions are concerned, this will become plus R2. Alright, plus R2. So, this is lens maker's formula. As far as the application is concerned, if this lens is placed in water, then mu2 will be what? Mu glass, because lens will remain of glass, and mu1 is medium, and I am saying it is placed in water, so mu w 1 upon R1 plus 1 upon R2. Alright, this formula you will use. Okay. Suppose I am talking or I am comparing focal length of this lens in air and focal length of this lens in water. In case of air, what will be the formula? Mu g, mu air minus 1 upon R1 plus 1 upon R2. This you can write simply refractive index of glass with respect to air. This you will write refractive index of glass with respect to water, mu g upon mu w. Refractive index of glass with respect to water. You know refractive index of glass with respect to air is more than this. Refractive index of glass with respect to air is more than refractive index of glass with respect to water. Since this value is more, this is 1 upon Fa, I am writing clearly. Since this is more, so Fa will be less. It means when you are dipping convex lens in water, focal length will increase. Okay, you will solve numerical based on this. Things will be given. Suppose this value is given, R1 is given, R2 is given. You will find out Fw, simple type of numerical. Okay. If
these two things are not given. I am just taking one example. Because if I am not doing derivation, at least I should do one numerical. Highlight does not mean that only I have to name the topics. It will be injustice with our viewers. Question is, focal length of lens in air say 20 centimeter. Focal length of glass 1.5, focal length of water 1.3. Obviously, these are with respect to air. You have to find focal length in water. Then, how will you proceed? See, focal length in air. I will start from focal length in air. No problem. Just it was written 1 upon R1 plus 1 upon R2. No problem. It was written FA is given 20. So 1 by 20. This is 1.5 minus 1. I am little fast. Alright. 1 by 20. This has become 0.5. 0.5 means half. 1 upon R1 plus 1 upon R2. So 1 by R1 plus 1 by R2 is equal to 1 by 10. 2, 10 to 1 by 10. Okay. Now come to water part. Now you are going to dip the lens in water. Refractive index of glass, यही तो था ना. रिफ्रैक्टिव क्या था? रिफ्रैक्टिव ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर था, तो इसका मतलब म्यू जी भाई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, 1 अपॉन FW, इसकी वैल्यू 1.5, इसकी वैल्यू 1.3 माइनस 1, ये वैल्यू मिल गई है आपको 1 by 10. ओके, पूरा सॉल्व कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को मैं. 1 अपॉन FW, ये हो गया 0.2, 1.3. चेक कर लीजिए एक बार, नोट करते चलें. अब इसको सीधा कर लीजिए. FW ऊपर हो गया 13.2, कैंसिल हो गया 65 सेंटीमीटर. जो कॉन्वेक्स लेंस एयर में 20 सेंटीमीटर का था, वो वाटर में कितने सेंटीमीटर फोकल लेंथ का हो गया? 65 सेंटीमीटर. तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई. तो एक न्यूमेरिकल था, उसी टॉपिक में मैं आपको पहले बताया एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन कि व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इफ इट इज डिप्ड इन वाटर. ओके, तो ये एक आपका एप्लीकेशन इसका हुआ. और भी कई एप्लीकेशन है इसके. कॉन्वेक्स लेंस का नेचर चेंज करने जा रहा हूं मैं. कॉन्वेक्स देखने से, फिजिकली देखने से कॉन्वेक्स लगेगा, लेकिन बिहेव करेगा वो कॉनकेव जैसा. कैसे? ये म्यू1 था इसका नोटेशन मीडियम का, और ये क्या था? म्यू2 था. फोकल लेंथ का फार्मूला भी आपके सामने था. फोकल लेंथ 1 अपॉन
F इज इक्वल टू μ2/μ1, ऐसे याद करेंगे आप। लेंस अपॉन मीडियम, लेंस अपॉन मीडियम, लेंस अपॉन मीडियम, L/m, L/m, लेंस अपॉन मीडियम। ओके, कॉन्वेक्स लेंस है। अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक हो गया, ये मीडियम है, ये क्या है? लेंस, और ये क्या है? मीडियम। मतलब ये हो गया आपका डायमंड और ये हो गया ग्लास। यू हैव प्लेस्ड ग्लास लेंस इनटू डायमंड। देखिए बेटा लोग, इसकी वैल्यू बड़ी हो गई तो ये पूरी वैल्यू नेगेटिव हो गई, फोकल लेंथ क्या हो गया? नेगेटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा बिहेव करेगा? कॉनकेव जैसा बिहेव करेगा। तो ये लेंस मेकर्स आप कर लेंगे और इसके एप्लीकेशंस हैं। इसके बाद का टॉपिक होगा आपका, अब इन डेप्थ आप देखोगे इन चीज़ों को, इन डेप्थ देखोगे। लेंस कॉम्बिनेशन, लेंस कॉम्बिनेशन, लेंस कॉम्बिनेशन, टू कॉन्वेक्स लेंसेज placed in contact, focal length f1, focal length f2। ओके, तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ का फार्मूला हो जाता है 1/f1 + 1/f2। You know 1/f is equal to पावर। डेरिवेशन इसका आप कर लेंगे, पावर का फार्मूला हो गया। क्लियर? तो जाहिर सी बात है कि पावर बढ़ जाएगा, कॉम्बिनेशन का पावर क्या होगा? पावर बढ़ने का मतलब क्या? फोकल लेंथ छोटी हो जाएगी ना, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, पावर बढ़ गया। बट वन इज कॉन्वेक्स, अनदर इज कॉनकेव। वन लेंस इज कॉन्वेक्स, another lens is concave, then we all know focal length of concave is with minus sign, this is minus sign, power P1 minus P2 हो गया, पावर क्या हो गया? P1 minus P2। if P1 is more than P2, P1 more than P2 का मतलब क्या हुआ बेटा लोग? ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स और F2 कॉनकेव, कॉन्वेक्स और ये क्या हो गया? कॉनकेव। मीन्स इफ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स इज लेस तो पावर ज़्यादा हो जाएगा। बोलो, P1 बड़ा होगा कि नहीं? इसका मतलब P1 बड़ा होगा। या तो ये कहो कि कॉन्वेक्स का पावर ज़्यादा, या ये कहो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कम, बोथ हैव सेम मीनिंग। तो P का साइन क्या हो गया? पॉजिटिव। कॉम्बिनेशन विल बिहेव लाइक कॉन्वेक्स लेंस, कॉम्बिनेशन विल बिहेव लाइक कॉन्वेक्स लेंस। ऑल राइट, रिपीट कर दूं, कॉन्वेक्स कॉनकेव कॉम्बिनेशन का ये फार्मूला, P1 माइनस P2 कर दिए। अलग अलग कंडीशंस इम्पोज कर रहा हूं कि अगर कॉन्वेक्स का पावर अधिक है, पावर अधिक मतलब फोकल लेंथ कम, कॉम्बिनेशन में जिस लेंस की फोकल लेंथ कम होती है, कॉम्बिनेशन का नेचर उसी लेंस की तरह बिहेव करता है। क्लियर? इसका उल्टा, अगर ये बड़ा होता, ये छोटा, समझ गए मेरी बात? P1 छोटा, P2 बड़ा, मतलब F1 बड़ा, F2 छोटा। तो कॉनकेव की फोकल लेंथ कम है, यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं आप। तो पावर का साइन क्या आ गया? नेगेटिव। बोलो, P2 बड़ा, नेगेटिव वाली चीज बड़ी,
तो कॉम्बिनेशन का नेचर क्या हो गया? कॉनकेव। क्लियर है बात? दोनों की फोकल लेंथ सेम हुई तो प्लेन ग्लास शीट की तरह P1 इज इक्वल टू P2 अगर, तो P इज इक्वल टू 0। पावर 0 का मतलब कोई लेंस नहीं, पावर 0 का मतलब फोकल लेंथ इनफाइनाइट। किस चीज़ की फोकल लेंथ इनफाइनाइट? ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब की फोकल लेंथ कितनी बेटा लोग? इनफाइनाइट। पावर 0। सन ग्लासेस, धूप वाले चश्मे, ठीक, वो प्लेन ग्लास शीट तो नहीं होता, ठीक है, लेकिन कैसा होता है? ऐसा, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होता है। तो ये था लेंस कॉम्बिनेशन, एक टॉपिक आपका इसमें। लेंस मेकर्स पढ़ लिए हम लोग, लेंस कॉम्बिनेशन देख लिए। अब लेंस कॉम्बिनेशन में इतना सिंपल न्यूमेरिकल आ जाता है कि पूरे के पूरे 3 नंबर मिल जाते हैं। कैसे? सुन लीजिए। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ दे दिया 10 सेंटीमीटर, कॉनकेव की फोकल लेंथ दे दिया 20 सेंटीमीटर। पता चल गया कि कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा। कहता है इसके सामने आप एक गिवन डिस्टेंस कुछ दे दिया 20 सेंटीमीटर पे एक 5 सेंटीमीटर हाइट का ऑब्जेक्ट रखे। इमेज की हाइट बताएंगे, इमेज हाइट बताओगे, इमेज पोजीशन बताओगे, सिंपली क्या कर लिए बच्चों? पहले आप कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकाल लिए, देख लिए कैसा लेंस हुआ ये 1/f 1/10 -1/20 20 2 - 1 1/20। तो f क्या आ गया? +20 आना ही था, +20 आना ही था। क्यों आना था? प्लस क्यों आना था? कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कम है, कॉम्बिनेशन कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ का साइन प्लस होता है तो प्लस आ गया। ये देखिए, ये वर्बली आप बता दोगे। तो अब एक नया लेंस आप बना दिए, कॉन्वेक्स बना दिए, कॉन्वेक्स बना दिए, इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर रख दिए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट 20 पे ही रख दिए हो, ये देखो फोकस पे ही रख दिए, तो इमेज कहाँ बनेगी इसकी? इन्फिनिटी पे बन जाएगी। इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे। डेटा चेंज कर दूं अगर मैं कर दूं, चलो 30, तो लेंस फार्मूला लगा देना। क्या लगा देना? लेंस फार्मूला। ऑब्जेक्ट कहाँ है? 30 पे रखा है, फोकल लेंथ कितनी? 20, मतलब फोकल लेंथ के बाहर है ऑब्जेक्ट, f और 2f के बीच है, f और 2f के बीच है। इमेज कैसी बनेगी? मैग्नीफाइड बनेगी, इन्वर्टेड। कैसे याद करो? फोकल लेंथ 20, ऑब्जेक्ट 30 पे, मतलब f 20 पे 2f 40, तो 30 क्या है? 20 और 40 के बीच में, तो f और 2f के बीच ऑब्जेक्ट रहता है, तो इमेज कहाँ बनती है? बियॉन्ड 2f बनती है, मैग्नीफाइड बनती है। खैर 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v माइनस, इधर का साइन माइनस, -30 1/20 1/1/20 प्लस माइनस 30, सॉल्व कर लिए, 60 आ गया, 3 - 2 1/60, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया? 60 आना ही था, 40 से बड़ा आंसर आना चाहिए था, क्योंकि 2f कहाँ जा रहा है? 40 पे जा रहा है। इमेज कहाँ बनेगी? बियॉन्ड 2f बनेगी, 3 बार बता चुका मैं। फिर उसके बाद फार्मूला v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज कितनी आ गई? 60, u कितना था? -30 पे, हाइट ऑफ इमेज निकालनी थी, ये कितना था? 5 सेंटीमीटर,
तो ये 2 हो गया, इमेज आ गई -10 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही, इमेज मैग्नीफाइड होनी थी, ऑब्जेक्ट F और 2F के बीच था, इमेज बियॉन्ड 2F बनी, मतलब 40 से बाद बनी, और इमेज मैग्नीफाइड भी हो गई, 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर हो गई। तो ये लेंस कॉम्बिनेशन का एक न्यूमेरिकल भी आप लोग लगा लिए। ठीक, इसके बाद है हम लोगों का मामला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। बेटा लोग, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ नहीं कहना है मुझे, केस स्टडी में आ रहा है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, 5 मार्कर में आ रहा है। कैसे आ रहा है ये देखते हैं हम लोग। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या बन रहा है इसमें देखते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सिंपल माइक्रोस्कोप पहली चीज है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, जो आपका वॉच मेकर्स लेंस होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास है, मैग्नीफाइंग ग्लास स्टैंड वाला देखते हैं सब लोग, वो सब क्या है, सिंपल। बायो लैब में जो बड़ा सा रखा रहता है उसको मत सिंपल माइक्रोस्कोप का देना, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। वॉच मेकर्स लेंस जो घड़ी बनाने वाले भैया लोग आँख में लगाते हैं वो सब क्या है। तो इसमें देखिए 2 केसेस में है। पहला केस होता है इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसका डेरिवेशन आपको करना है मैग्निफिकेशन का 1+d/f। d 25 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा न्यूमेरिकल में यहाँ पे d की जगह -25 अब नहीं रखोगे, 25 ही रखोगे। और f फोकल लेंथ ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप में जो कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, सिंगल लेंस यूज हो रहा है। वॉच बार बार कह रहा हूँ, वॉच मेकर्स लेंस है ये, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास एक ही तो लेंस होता है वो। दूसरा केस इसमें है इमेज एट इन्फिनिटी। ये पूरा डेरिवेशन आप लोग कर लेंगे, इमेज एट इन्फिनिटी। कंसेप्चुअल बता रहा हूँ, असर्शन रीजन के लिए स्टेटमेंट दे दिया गया कि सिंपल माइक्रोस्कोप फोकल लेंथ ऑफ लेंस यूज्ड इज वेरी लेस। रीजन दे रहा है टू मेक हाईली मैग्नीफाइड सिंपल माइक्रोस्कोप दिस टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड। बिल्कुल सही, फोकल लेंथ कम होगा, मैग्निफिकेशन ज़्यादा होगा। ठीक, तो सही बात है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उसको सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है वो। ठीक, तो सिंपल माइक्रोस्कोप आप कैसे लेंस से बनाओगे, कॉन्वेक्स लेंस से बनाओगे, और वेरी स्मॉल फोकल लेंथ या हाई पावर वाले से बनाओगे। ठीक है, दोनों में ही इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। ध्यान देना, हम लोग जो मैग्नीफाइंग ग्लास से इमेज देखते हैं, ऑब्जेक्ट की इमेज देखते हैं, वो कैसी देखते हैं, मैग्नीफाइंग। देखो डेरिवेशन कर लेते हैं बच्चे, लेकिन उसकी बारीक बातें नहीं देखते। तो मेरा एम यहाँ पे ये है कि कोई देख रहा था वीडियोस भरी पड़ी हैं डेरिवेशन की, तो मैं सोचा कि ऐसी वीडियो बनाई जाए कि डेरिवेशन से अलग जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी बच्चे कर लें। नाम मैं ले रहा हूँ डेरिवेशन का, देखो ये डेरिवेशन है, करना है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए सोर्सेज हैं आपके पास। इन चीज़ों के सोर्सेज नहीं के बराबर है, कम है, तो मैं कंसेप्चुअल पर अटैक कर रहा हूँ। क्या कहा मैं कि कॉन्वेक्स लेंस है, आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हो, इस वाले में अंडर फोकस रख रहे हो, इमेज यहाँ बन रही है। ठीक, तो वर्चुअल बन रही है, मैग्नीफाइड बन रही है। इमेज एट इन्फिनिटी वाले केस में आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हो, इस कॉन्वेक्स लेंस के सामने फोकस पे रख रहे हो, इमेज कहाँ बन रही है, मैग्नीफाइड बन रही है। ठीक, एट इन्फिनिटी बन रही है। बात आई समझ में। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप के 2 केसेस थे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऐसे 2 केसेस हैं बच्चों। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के 2 केसेस हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपका बायोलैब वाला है, कंपाउंड
माइक्रोस्कोप, इसमें भी दो केसेस हैं, इमेज एट डी, इमेज एट डी। दूसरा केस, दोनों के अलग अलग रे डायग्राम, अलग अलग डेरिवेशन है, इमेज एट इन्फिनिटी, इमेज एट इन्फिनिटी। इसमें भी कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल बनती है, मैग्नीफाइड बनती है। मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी जो आप इमेज देखोगे, कैसी इमेज देखोगे? वर्चुअल देखोगे बेटा, ध्यान रखना, मैग्नीफाइड देखोगे, ठीक। और जो आई लेंस होता है उसके पीछे, पीछे का मतलब ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, आई लेंस ये बड़ा होता है, आई लेंस बड़ा है। जो इमेज या ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है जस्ट बियॉन्ड फोकस, अभी बताऊंगा जस्ट बियॉन्ड फोकस क्यों, याद रखना जस्ट बियॉन्ड फोकस। तो इमेज या तो यहाँ बनेगी या तो यहाँ बनेगी, तो मतलब बिहाइंड द आई लेंस। आँख यहाँ है, कभी मत कहना कि आई लेंस और आँख के बीच में, नहीं, इधर बनेगी। जो भी लैंग्वेज यूज़ करेगा पेपर का, आप समझे रहोगे तो लैंग्वेज समझ जाओगे, ठीक। पहले केस का मैग्निफिकेशन का फार्मूला मैं लिख दूँ, m इज इक्वल टू माइनस वी ओ अपॉन, एक और वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है, प्रिज्म के बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा, मेन न्यूमेरिकल्स कराऊंगा रे ऑप्टिक्स के, वी ओ अपॉन यू ओ 1 प्लस डी बाई एफ ई, डी बाई एफ ई, ये फार्मूला है। वी ओ आपको मालूम है क्या है? वी ओ सुन लीजिए क्या, ताकि न्यूमेरिकल कर लें। इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ कहीं बन रही होगी बेटा लोग, कहीं बन रही होगी ना, तो ये क्या हो गया? वी ओ हो गया। ये क्या हो गया? यू ओ, ओ मीन्स ऑब्जेक्टिव लेंस, ओ मीन्स ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ठीक। ये है वी ओ, बता दिया, और ये है यू ई, ये क्या है? यू ई, दिस इज ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस। ये ऑब्जेक्टिव लेंस से बनने वाली इमेज आई लेंस के लिए कैसा काम करेगी? ऑब्जेक्ट का। और इससे कहते हैं, दोनों लेंस के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो L इज इक्वल टू क्या हो गया? वी ओ प्लस यू ई हो गया। सेकेंड केस इसका क्या है? इमेज एट इंफिनिटी माइनस वी ओ अपॉन यू ओ डी बाई एफ ई। अब ध्यान देखना, ये इतनी चीज क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप के इमेज एट डी वाला कम है। ये इतनी चीज क्या है? याद करने का तरीका है, ये इतनी चीज क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप में इमेज एट इंफिनिटी वाला, इमेज एट इंफिनिटी वाला, ठीक। इसमें बढ़िया चीज सुन लो आप, फोकल लेंथ आई लेंस की कम होगी, मैग्निफिकेशन ज़्यादा, यूओ कम, मैग्निफिकेशन ज़्यादा इन्वर्सली। और यूओ कम कब होगा? जब एफओ कम होगा, ये एफओ है, ठीक। तो एफओ और एफई दोनों ही छोटे होने चाहिए, एफओ एंड एफई बोथ शुड बी स्मॉल, बोथ शुड बी स्मॉल। तो इसका डेरिवेशन आप लोग कर लोगे, ठीक है। ये कंसेप्चुअल बातें हो गई, लेंथ की बात आ गई, ये बता दिया कि दोनों स्मॉल फोकल लेंथ के होने चाहिए। ये भी नोट कर लो कि अगर आप लेंसेज के बीच का डिस्टेंस कम कर रहे हो, शॉर्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, तो उसका मैग्निफिकेशन ज़्यादा होगा, मैग्निफिकेशन उसका ज़्यादा होगा। Short compound microscope means if the distance between objective and eye lens is less, the magnification of that compound microscope will increase. Okay, इसी तरह है टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप इस वीडियो में नहीं रखूंगा मैं, टेलीस्कोप और प्रिज्म, टेलीस्कोप के दोनों टाइप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और प्रिज्म, ये एक वीडियो में रखूंगा मैं, ठीक है। तो बच्चों, हमारे इन वीडियोस को बनाने का पर्पज़ ये नहीं है कि मैं आपको डेरिवेशन बताऊं, मेरा पर्पज़ ये है कि आप एक रन